নমস্কার, শুভ্ররাত্রির আরো একটি সরাসরি আয়োজনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আপনারা যারা প্রতি রাতে আমাদের এই আয়োজনে যুক্ত হন, আপনারা জানেন আমরা এক এক দিন এক একটি বিষয় নিয়ে, এক একটি ভাবনা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি। আজকে এই স্টুডিওতে এমন একটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো যে বিষয়টি হয়তোবা আমাদের রাজ্যের এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের অনেকেরই কাজে লাগবে, এবং এমনও হতে পারে আগামী দিনে এই আলোচনা যদি সামাজিক মাধ্যমে কেউ কখনো ঘোরাতে ঘোরাতে পেয়ে যান, তখন তাদেরও হয়তো বা কাজে লাগবে। অভিভাবকরা যারা রয়েছেন, আপনারা টেলিভিশনের পর্দায় কিংবা হাতে মোবাইল ফোনটি নিয়ে রেখেছেন, এই মুহূর্তে শুভ্ররাত্রির আয়োজন দেখছেন, আপনাদের বলি আপনারাও স্বজনদের পাঠাতে পারেন এই আয়োজনের লিংক। কারণ আমাদের এই শহরের অত্যন্ত নামী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাইন্যাপস, তাদের তরফে ইতিমধ্যেই একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারা সম্প্রতি নিট প্রপ বলে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় দেশীয় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, এবং তাদের অন্যতম প্রধান যিনি প্রতিষ্ঠাতা স্যার কপিল গুপ্তা, তিনি রাজ্যে এসেছেন গতকাল প্রথমবারের মতো। আমাদের স্টুডিওতে আজ তিনি অতিথি। আমরা নিট পড়াশোনা কিভাবে কি করতে হবে এবং অভিভাবকদের প্রধানত কি মাথায় রাখতে হবে, কি খেয়াল করতে হবে, ছাত্রছাত্রীরা কি করলে এই পরীক্ষায় সফল হতে পারবেন ইত্যাদি নিয়ে আজ কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যিনি, তার সঙ্গে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো। আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো সরাসরি টেলিফোন করে করতে পারেন, আমাদের লিখে জানাতে পারেন। আমরা সেই প্রশ্নগুলো, আপনাদের প্রস্তাবনাগুলো ওনার মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করব। First of all, Kapil sir, thank you so much for being a part of this wonderful show, and we are so grateful that it's night time and you took out your own time to be here. To begin with, sir, when just make it a point that my audience knows who you are basically. You have done your BTech from IIT Delhi. You have done your MBA from University of Southern California in Los Angeles, and you are founder of NEETPrep.com. It's a very short way of introducing someone of your magnitude before my audience, but can you please share us your childhood days? I mean, where did you study? How was your beginning? Correct. Your own childhood memories. तो सर मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से हूँ। Okay. छोटी फैमिली से आता हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और हम सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए द पासपोर्ट टू सोशल मोबिलिटी आर दीज कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ऐसा लगता था कि आईआईटी में पास किया तो अच्छी जिंदगी मिलेगी, तो मेहनत किया। 97 में आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ, बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, 2001 में ग्रेजुएट किया। Sir, you directly jumped to IIT. I want to know your उसके childhood पहले days. उसके Yeah. पहले तो How was your school life? I mean, स्कूल लाइफ आई वेंट टू सेंट जेवियर्स, इट वाज अ गुड स्कूल इन जयपुर। Okay. पर मुझे काफी सारी चीजें उस टाइम पे इस चीज से समझ में आती कि मेरे पेरेंट्स के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट थी और न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट था, बाकी चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो एक स्कूटर था, उस स्कूटर पे जैसा अपने मिडिल क्लास इंडिया का है, एक स्कूटर है, उसमें मम्मी पापा और मैं बैठ के तो कभी ये नहीं सोचा कि कार खरीद लेते एट द एक्सपेंस ऑफ समथिंग एल्स। तो उस सेंस में चाइल्डहुड वाज ऑल अबाउट प्लेइंग एंड स्टडिंग एंड कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी। इट वाज यदि एक शर्ट 6 महीने की जगह 2 साल पहनना है तो दैट इज फाइन। तो दैट वाज माय चाइल्डहुड। And what about your parents? I mean, what they used to do? मेरे फादर एक छोटी जॉब करते थे बैंक में। Okay. वो अभी भी जयपुर में रहते हैं। मदर हाउसवाइफ थी, आई एम द ओनली किड, देयर इज नो सिबलिंग। And how are their impressions now? What do they feel about you, your success line and success stories? तो पेरेंट्स के लिए तो आप हमेशा बच्चे रहेंगे, है ना। तो दे आर नॉट गोइंग टू बी ओवरऑड बाय हु यू आर, कभी भी। Right. तो यदि कोई मेरे से पूछना चाहता है कि वाई पेरेंट्स आर इंपॉर्टेंट, लाइफ में आपके वो दो लोग रहेंगे हु विल ऑलवेज बी सेल्फलेस इन देयर लव। एवरीवन एल्स वुड हैव सम काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक, बट और पेरेंट्स के अगेंस्ट बहुत पुशबैक भी होता है जब एडोलेसेंट होते हैं, जब वहां से निकल जाते हैं, कॉलेज वगैरह पहुंचते हैं, फिर याद आता है कि कैसे समवन वाज, कोई हमेशा आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, समवन वाज ट्राइंग टू प्रोवाइड थिंग्स फॉर यू। तो दैट वाज, हाँ, वो मेमोरीज रहती है। Okay. What is the best thing about your mother that you remember today? I mean, maybe after many years. She was very patient. She was never angry, and मुझे बस यही है, रात को भी मैंने बोला कि कुछ खाने का मन कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत देर देर तक पढ़ाई करना पड़ता है, और आप 12 साढ़े 12 पे पढ़ रहे हो और भूख लग रही है, क्या करो? तो जाके बोल दिया सो रहे हैं, उठेंगे बना देंगे और फिर वापस सो जाएंगे। Lovely memories.
And then, I mean, someone from your background, someone from background like we people belong to, I mean, as you said that middle class families, lower middle class families, when they aspire to dream something big like IIT, Kapil Sir, can you please tell us, I mean, tell my young audience today who are watching this show, or maybe who will watch it after 2, 3, 4, 5, 7 days, or maybe after a few months, I mean, how it is to be, how to dream big, how to dream big, वो कैसा होता है? देखिए ऑप्शन नहीं है ड्रीम बिग के अलावा, हाउ टू ड्रीम बिग की बात ही नहीं आती। मतलब या तो मैं अपने आप को कन्विंस कर लूं दैट दिस इज हु आई एम, इतनी मेरी कैपेबिलिटी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पापा की एक छोटी जॉब है, मेरी भी एक छोटी जॉब हो जाएगी आसपास में, एक तो वो है। और दूसरी चीज क्या है, थैंकफुली माई पेरेंट्स वर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी की चलो इसे अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, इसे किसी ट्यूशन में भेज देते हैं। दे वर डेफिनेटली स्पेंडिंग बियॉन्ड देयर मीन्स, कैसे ना कैसे करके। मुझे बाद में पता चलता था यहां से छोटा लोन ले लिया, वहां से छोटा लोन ले लिया, बट दे वर स्पेंडिंग बियॉन्ड देयर मीन्स। They never compromised with your studies. और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरा नहीं है, आज मैं बहुत सारे बच्चे जिनके साथ साइनैप्स के अंदर मिला, जो अगरतला से है। अगरतला इज नॉट अ वेरी बिग एंड रिच सिटी, Right. जो कुछ लोग बाहर से आए थे, सबका यही था। पेरेंट्स के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि इस टाइम पे पैसे का बेस्ट इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और न्यूट्रिशन है। और मैं हेल्थ नहीं बोल रहा, मैं न्यूट्रिशन बोल रहा हूँ। वो कोशिश करेंगे कि बच्चा अच्छा खा ले, है ना, वो कोशिश करेंगे कि उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। यदि उसे अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, अच्छे स्कूल में डाल देंगे। वो कोचिंग के ऊपर खर्चा करेंगे। वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, इट इज नॉट नेसेसरी दे कैन अफोर्ड, बट वो उसमें खर्चा करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे मेहनत करके उसका किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, एनआईटी में हो जाता है, आईआईटी में हो जाता है, तो फिर उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। हमें फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। Exactly. And then, sir, I mean, when you took your entry to the IIT, उस लाइफ का क्या था? थोड़ा बहुत IIT जबरदस्त दिल्ली है। के, मैं आपको बताता हूँ, बहुत जबरदस्त है। हाँ, तो एक बार आप आईटी में पहुंच गए तो नाउ यू आर इन बिटवीन, आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों के बीच में, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि यू सडनली, पहले तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं अपने स्कूल का टॉपर था, यहाँ पे आई एम नो वन, राइट, क्योंकि वहां पे सारे टॉपर्स आए और आपसे बड़े बड़े टॉपर्स आए। तो आप फिर अपना रास्ता ढूंढ लेते हो। आपको रियल लाइफ, जो आपको कंपटीशन आप दुनिया में बाहर फेस करोगे, उसका एक्सपीरियंस वहां पे फर्स्ट टाइम आपको मिलना चालू होता है। और उसके बाद आप सच में किस में अच्छे हैं, आपको वो सोचने के लिए सिस्टम मजबूर करता है। यदि आप सब जैसे हैं और कोई किसी चीज में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज में, तो काम नहीं चलेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किसमें अच्छे हैं। तो मुझे आईआईटी में जाके पता चला कि आई एम वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, आई एम वेरी गुड एट वर्किंग लॉन्ग आवर्स, आई एम वेरी गुड एट ऑपरेशंस। तो वो सब मतलब दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट कॉलेज लाइफ। एक बार आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जो भी रोज पढ़ाई करते हैं सोचते हैं क्यों मेहनत कर रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं, आप एक एम्स दिल्ली जाएंगे, एक मौलाना आजाद जाएंगे, इन भुवनेश्वर जाएंगे, अगरतला मेडिकल कॉलेज जाएंगे, तो वहां पे जिंदगी है। जिस टाइप के लोगों से आप मिलेंगे वो आपका नजरिया एकदम खोल देगा। अभी आपका नजरिया इतना सा होगा, इतना बड़ा होगा। वेरी नाइस। सर, ये भी आप हमको बता दीजिए कि हाउ डू यू इंटरसेप्ट योर ओन एजुकेशनल जर्नी। अगर ये तो आपने छोटे छोटे बातें बता दिया कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, एंड यू ऑब्वियसली टाइम इज शॉर्ट एंड यू आर जस्ट मेकिंग इट वेरी कंसाइज, बट अगर आपको ये पूछा जाए कि हाउ डू यू इंटरसेप्ट योर ओन एजुकेशनल जर्नी, वहां से आईआईटी आपने खत्म कर लिया, यू कुड हैव इजीली बीन इनटू अ जॉब, आपने वो लिया नहीं, एंड देन यू मूव टू द फॉरेन कंट्री फॉर डूइंग योर, मैंने 4 साल जॉब किया बीच में। ओके। तो मैंने 2001 में बीटेक किया अपना, और बीटेक करने के बाद मैंने 4 साल बैंगलोर में काम किया। ओके। I got experience, I earned some money. My parents could not have afforded a foreign education. तो उसमें से कुछ पैसा जो सेविंग हुआ, उसको अभी भी इन्वेस्टमेंट वाला मोड ही है। अभी भी घर में कार नहीं आया, अभी भी स्कूटर ही है। कार जाके आया है 2009 में। अच्छा। वो भी मारुति ऑल्टो, है ना। Okay. पर क्लियर था कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते रहना है। तो आई वेंट टू अमेरिका, 4 साल काम करने के बाद इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में वहां पे 2 साल का एमबीए किया। Who suggested you? I mean, after BTech? नहीं, आपको सजेशन नहीं है, आपको सजेशन नहीं है। पेरेंट्स आपको या आसपास की दुनिया आपको सजेस्ट करिए सिर्फ जब तक आप 12th में हैं। उसके बाद यू आर फाइंडिंग योर वे, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप इंटरनेट पे हैं, इंटरनेट भी आना चालू हो गया था, तो आपको यू आर गेटिंग एक्सपोज टू द वाइडर वर्ल्ड एंड आपको दुनिया से आइडिया लग रहा है कि शायद मैं आईआईएम नहीं जाना चाहता, शायद मैं बाहर जाके एमबीए करना चाहता हूं, मुझे एक फॉरेन एक्सपीरियंस चाहिए।
तो किसी ने सजेस्ट नहीं किया, इट ऑल द इंटरेक्शन जो भी आसपास हो रहे थे उससे ये डिसीजन मेकिंग में आया कि एमबीए करना है बाहर में। एक स्टूडेंट के नाता हमें ये बता दीजिए ना सर कि मतलब आपके दिमाग में ये सोच क्यों आया कि मुझे नौकरी छोड़ के मुझे बाहर जाना है और दूसरा और कोई कंट्री में और वहां पे जाके मुझे एमबीए करना है। हाँ। ये एक स्टूडेंट के मतलब पर्सपेक्टिव, why did all of a sudden you think that it's important I need to be outside and do my MBA? तो देखिए एक लेवल पे तो इस चीज से भी डिसाइड हो रहा था कि जो लोग मेरे साथ आईआईटी में थे वो क्या कर रहे थे, हाँ। है ना। तो जनरली लोगों का करियर इस तरह से होता है कि आईआईटी में जाके जनरली लोग एमबीए भी करते हैं उसके बाद। ओके। वो इमीडिएटली चले जाएंगे कायम अहमदाबाद या लखनऊ या बैंगलोर या कलकत्ता वगैरह, या फिर कुछ लोग होंगे जो थोड़े टाइम जॉब करेंगे और उसके बाद बाहर एमबीए करने जाएंगे। तो मैंने ऐसा कोई पाथ चूज नहीं किया था जो किसी ने कभी नहीं किया था। मेरे आसपास के दोस्त, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो लार्जली यही वाला पाथ चूज कर रहा था, तो मैंने भी वही वाला पाथ चूज किया। ओके सर, ये जो नीट प्रेप का मतलब प्रेप बाय प्रेप ऑब्वियसली यू मीन प्रिपरेशन आई बिलीव, करेक्ट। तो नीट prep.com ये जो आपने मतलब इनिशिएटिव चालू कर दिया देश में, being an engineer, I mean from the background of being in IIT and that also doing your BTech and then MBA, all of a sudden how the thought process came that you would mold doctors of the country? ये सोच कैसे तो आया? दैट वाज वी स्टम्बल्ड इनटू इट। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, प्लान कुछ और करने का था, पर हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया। तो मैं 2009 में इंडिया वापस आ गया। 2009 से 2016 तक मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किए। मेरी बेसिक डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में है। 2016 में मैं कुछ लोगों से, 2 और लोगों से बिहार में मिला था, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहा था मैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड्स विद ड्रेन्स, सीवरेज स्कीम्स, वाटर सप्लाई स्कीम्स। तो वहां पे मैं कुछ लोगों से मिला, उनके साथ एक कंपनी स्टार्ट किया। आइडिया कुछ और था, पर उस समय पे खान अकेडमी बड़ा पॉपुलर था। उस समय तक बायजूस नहीं आया था जब हमने 2016 में स्टार्ट किया। उस समय तक जियो भी नहीं आया था। बहुत सारा ऑनलाइन एजुकेशन आज जो है वो इस वजह से है कि जियो से जो बैंडविड्थ है, हाई स्पीड इंटरनेट बहुत सस्ते प्राइस पे मिलना अवेलेबल हो गया, तो वो बाद में लॉन्च हुआ है। तो उस समय तक हमारा इंस्पिरेशन खान अकेडमी था कि दुनिया में अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है। ऐसे तो हर गली नुक्कड़ पे एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टीचर है, पर बहुत अच्छे टीचर्स बहुत लिमिटेड है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। तो क्या हम उन टीचर्स का एक्सेस ऑनलाइन के थ्रू ज्यादा लोग के पास पहुंचा सकते हैं? दैट वाज द बेसिक आइडिया। ओके। अब इट सो हैपेंड कि उस समय पे हमें लगा कि नीट की तरफ रास्ता आसान है। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर neetprep.com डोमेन हमने रजिस्टर किया था 9 मई 2016 को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था कि अब नीट का एग्जाम होगा। तो वी वर सिटिंग, वी वर वॉचिंग एंड वी थॉट दैट्स अ ग्रेट आइडिया, लेट्स डू इट, देयर इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी इन दिस। तो हम लोगों ने उस दिन स्टार्ट किया 9 मई 2016 neetprep.com, और फिर वो धीमे धीमे अलग अलग रास्ते। और उसके बाद क्या होता है, आपका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है और आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे जैसे आप रियलाइज करते हैं तो आपको एक डायरेक्शन में लेते जाता है। तो आज हम नीट की तैयारी कराने में स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली 10 लाख क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। पिछले 4 साल में 95 करोड़ क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। और हमारे यहाँ पे कोई एक महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि वो एंड में कहां तक पहुंचेगा। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। पिछले 5 साल में इंक्लूडिंग दिस ईयर 7000 स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ से एमबीबीएस सीट मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। दैट इज अ बिग अचीवमेंट। 7,000। इस बार का एक रैंक 1 शुभान सेन गुप्ता, उसने भी हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया 720 आउट ऑफ 720। उसने 25,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसने 92 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया हमारे यहाँ से। एक्सीलेंट सर, ये जो आपने मतलब आइडिया लाया एंड देन स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वंडरफुल वेंचर दैट यू स्टार्टेड, इसका मतलब obviously you will never share the main USP of your company, but at the same time any audience would love to listen to the success story of it. I mean इतने रीच जो आपने बढ़ाया वो कैसे बढ़ाया आपने? What was the mantra of it? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ स्पेसिफिक मंत्र नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली थी। अपॉर्चुनिटी का मतलब आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, एंड इन सम वेज वी वर लकी दैट वी वॉक्ड इन दैट डायरेक्शन। पर आप इस तरह से सोच सकते हैं, जिस साल नीट का एग्जाम चालू हुआ था 15.5 लाख लोगों ने नीट का एग्जाम लिखा था 2017 में। ओके। उतने ही लोगों ने आईआईटी का एग्जाम लिखा था उस साल। 15.5 लाख जेई और नीट। पिछले साल 24 लाख लोगों ने नीट का एग्जाम लिखा 2024 में, और जेई का एग्जाम 13.5 लाख लोगों ने लिखा। तो व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 6-7 ईयर्स इज
नीट के एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और जेई के एस्पिरेंट्स काफी कम हो गए, तो हम लोग उस डायरेक्शन में गए, तो उसका ओवरऑल उसका फायदा मिला है। पर उसके अलावा तो इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई वर्क 7 days a week, almost 12 hours a day, and I've been doing it for last 7 years. Every time. You don't have a holiday in your life. I don't have a holiday in my life, but that's how you build a brand. मतलब वो धीमे 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 एक कंसिस्टेंसी होती है। मैं आज भी हमारे जितने भी टेस्ट पेपर्स होते हैं उनकी अंग्रेजी में पर्सनली चेक करता हूँ, 3-4 घंटा लगता है, बट हमारे टेस्ट पेपर के अंदर एक भी फुल स्टॉप और कॉमा भी इधर उधर नहीं होगा। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारे फैकल्टी की जिम्मेदारी है, अंग्रेजी की जिम्मेदारी मेरी है। सो वी टेक दैट थिंग वेरी सीरियसली। जैसे आप खाना खाते हैं ना, दाल में कंकड़ आता है, तो एक खराब स्पेलिंग मिस्टेक है, फुल स्टॉप इधर उधर लिखा हुआ है, तो दैट इज द फील। यू शुड नॉट हैव दैट फील व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम NEETprep.com. Who gave you that wonderful sense of understanding about examination कि ऐसा होना चाहिए? ये आपने कहाँ से सीखा? धीमे धीमे सीखा। मतलब क्या होता है, मेरा बच्चा ग्रेड 10 में, तो वो भी कुछ कुछ किताबों से प्रैक्टिस करता है। तो जब किताब में देखते हैं ना कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, मजा नहीं आता कि यार इतना बड़ा ब्रांड है पर देखो अंग्रेजी भी चेक नहीं कर सकते, है ना। और कुछ जगहों पे तो बहुत ही खराब अंग्रेजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुड क्वालिटी पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उस पर लोगो शोगो नहीं होने चाहिए। बहुत सारे हमारे पेपर एकदम क्लीन होता है, उसमें कोई NEETprep का लोगो नहीं होता। तो इनफैक्ट अभी हमारा रेपुटेशन ऐसा है कि पेपर पे कोई भी लोगो नहीं है तो NEETprep का होगा, है ना। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय एक जापानीज ब्रांड है मूजी नाम से। Okay. तो मूजी के प्रोडक्ट्स पे कहीं पे भी मूजी नहीं लिखा होता, Okay. है ना। तो सिमिलरली NEETprep के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं कहीं पे भी NEETprep नहीं लिखा होता, तो दैट इज वेरी गुड। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंटेंट है, अच्छे कंटेंट के अंदर आपने कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं देखी होंगी, तो दैट इज माय डिजायर। सर, ये जो आप इतने सारे अच्छे चीज बता रहे हैं अबाउट NEETprep.com and obviously the brand that you have built over the years and with all your hard work, congratulations for that. But at the same time, we have seen recently that the whole country was in a fuss of the NEET examination, the result, and the pathetic way of news coming every day, parents crying, I mean children around the country sitting for agitation and saying that we don't agree to what has happened with the result and all that. What's your take on that? How do you? मैं आपको बताता हूँ, नीट का एग्जाम कराने की जिम्मेदारी NTA की है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उनका मोटो है एक्सेलेंस इन असेसमेंट। दिस इज व्हाट इज रिटन, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, राइट। आई डोंट थिंक दे टेक दैट मोटो सीरियसली। एक्सेलेंस इन असेसमेंट का क्या मतलब होता है? क्या आप एक ऐसा पेपर नहीं बना सकते जिसमें स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 नहीं आएंगे? क्या आप एक ऐसा पेपर बनाते हैं जिसमें कट ऑफ 655 आउट ऑफ 720 का मतलब हुआ इंडिया का जो वर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी लास्ट सीट आपको 91% मार्क्स पे मिल रही है। हाउ फेयर इज दैट? कांट यू प्रिपेयर अ गुड क्वालिटी पेपर विच इज एबल टू सेग्रीगेट बिटवीन पीपल हु नो एंड पीपल हु डोंट नो? यदि आप नहीं कर सकते, यू ऑलवेज से कि क्या फर्क पड़ता है पेपर में जिसके भी जितने नंबर आए, आप उससे अच्छा पूछ लो एप्पल स्टार्ट्स विद नंबर 1 A, नंबर 2 B, उससे भी कुछ ना कुछ सेग्रीगेशन तो हो ही जाएगा। बट उसके बाद आपको लॉटरी, यू नो व्हाट हैपेंस, एग्जैक्टली, एक मार्क पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो डिसाइड होता है किसके बायो नंबर ज्यादा है, फिर किसके फिजिक्स में, कितने किसके केमिस्ट्री में, और वो भी सेम होता है। तो फिर एक कंप्यूटराइज लॉट होता है जिसके बेसिस पे अब डिसाइड होगा कि आप इस वाले कॉलेज में जाएंगे, इस वाले कॉलेज। दैट इज अ ट्रेविस्टी ऑफ द सिचुएशन। आई होप, मेरे हिसाब से इस साल जो इतना ज्यादा हंगामा हुआ, इट वुड बी, आई होप इट वुड बी अ वेकअप कॉल। आई होप चीजें सुधरेंगी। मेरे हिसाब से NTA ने बहुत ही शॉडी जॉब किया। उन्होंने पहला अभी एक डिसीजन लिया है कि जेई के एग्जाम के अंदर इंटरनल चॉइस होती थी, 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, अब वो हटा लेंगे। वो कहते हैं कोविड के टाइम पे हमने रिलैक्सेशन डाला था, अब हटा रहे। नीट में भी होपफुली ऐसा होगा। होपफुली 2 लेवल का पेपर हो, जिससे यदि कोई चीट करने की कोशिश भी कर रहा है तो 2 बार चीट करना पड़े, 2 बार खर्चा हो, और होपफुली पेपर मल्टीपल टाइम्स हो। ये मेरे हिसाब से अनफेयर है स्टूडेंट्स के साथ कि इतना इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग एग्जाम कम्स डाउन टू परफॉर्मेंस फॉर 3.5 आवर्स। इमेजिन करिए 2 साल कोई तैयारी कर रहा है, उस दिन हाथ टूट गया, ही इज नॉट फीलिंग वेल, आई हैव फीवर राइट नाउ, और मेरा फीवर है और मैं एग्जाम लिख रहा हूं, मेरे 2 साल का एफर्ट बिकॉज समथिंग हैपेंड लास्ट नाइट।
तो मेरे हिसाब से पेपर मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, 2 लेवल पे होना चाहिए और पेपर को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। रिमेंबर, एनटीए यदि इस वीडियो को देख रहा है, आपका मोटो एक्सेलेंस इन असेसमेंट है, दिस इज नो एक्सेलेंस इन असेसमेंट। So well said. सर ये जो आपका वो है मतलब the way you are telling things and putting them right on track, I mean, can I also ask you and very humbly that what is the present scenario of online edtech forms? I mean, can you tell something about that to our guardians? देखिए मेरा and ऐसा students? मानना है कि ऑनलाइन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज 17-18 से कम है, एडोलेसेंट्स, जिनको मोटिवेशन का बड़ा इश्यू है, मेरे हिसाब से ऑनलाइन उनके लिए सप्लीमेंट्री मीडियम है एट बेस्ट। ओके। तो या तो आप सुपर सेल्फ मोटिवेटेड है, ऐसे भी बच्चे होंगे, वी आर अ वास्ट कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन से तैयारी नहीं हो सकती, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो रहा है आज, दे आर प्राइमरीली स्टडिंग इन क्लासरूम कोचिंग, और वो कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी ले रहे हैं एज अ सप्लीमेंट्री मीडियम। दे माइट टेक सम वीडियो कोर्सेज एज सप्लीमेंट्री मीडियम, they might take for example course from neetprep.com for question practice and testing, पर ऑनलाइन क्लास 12th तक के बच्चे के लिए इट इज एट बेस्ट अ सप्लीमेंट्री मीडियम, इट इज नॉट अ प्राइमरी मीडियम। और काफी सारा जो एडटेक में अभी चर्न हो रहा है, बायजूस इज इन बैड शेप, बाकी जो कंपनीज हैं अ लॉट ऑफ देम आर नॉट डूइंग वेल। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि उन्होंने खुद के दिमाग में बैठा लिया कि ऑनलाइन एक प्राइमरी मीडियम है, और उस हिसाब से उन्होंने प्राइसिंग किया, उस हिसाब से वो प्रॉमिस करते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू मेक दोस प्रॉमिसेस एंड दे आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन दोस प्रॉमिसेस। बच्चे के लिए एक डिवाइस पे घर पे बैठ के पढ़ना, रादर देन जब डिवाइस पे किसी का वीडियो देख रहे हैं, साथ में यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टाग्राम रील चालू हो गए, इट इज अ किड इज नॉट मेच्योर टू अंडरस्टैंड कि जब ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कुछ और चीज कर रहा है, तो he is playing with his career. Exactly. That is difficult. But यही बच्चा जब नीट पीजी की तैयारी करेगा या यूपीएससी की तैयारी करेगा, so they are able to do it from here, क्योंकि अब वो मेच्योरिटी है। आपका जो बचपना है वो 18-19 पे खत्म हो जाता है। जब आप एक बार आप कॉलेज में चले गए, उसके बाद यू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। जब तक आप 12th में आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है। Exactly. Sir, ये जो MCQ, मतलब this is a very common term that you Multiple people, choice yeah, question. that you people have given to the entire country, and almost all the educational system is now acquainted with this particular format. Do you think हम जो ये बात बोलते हैं regularly कि आगे ऐसा होता था, we used to read the entire text, now people do not concentrate on text, it's all about MCQ, so you don't need to read much, you need marks only, CBSE has changed the pattern, ICSE has changed the pattern. What's your take on MCQ technique? हाँ, तो दो चीजें समझ लीजिए। मैंने जब आईआईटी का एग्जाम लिखा था, तो मैंने 3 पेपर लिखे थे 3-3 घंटे के, विच वॉज सब्जेक्टिव, जिनको किसी ने मार्क किया होगा, है ना। पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैंने 300 मार्क्स में से कुछ 170 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे और 134 मार्क्स आते, उस पर मुझे आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन मिल गया था। आज मुझे इंडिया के सबसे बेकार प्राइवेट कॉलेज में भी उतने मार्क्स पे एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। पर हुआ क्या कि जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू जस्टिस इन टर्म्स ऑफ चेकिंग सब्जेक्टिव पेपर्स। तो इस वजह से धीमे धीमे जाके ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पिक्चर में आ गए। पर मेरे हिसाब से एक सर्टेन एज तक, खासकर फाउंडेशन एज 9, 10, इवन 11th और 12th, स्टूडेंट्स आर लूजिंग द आइडिया ऑफ हाउ टू राइट, हाउ टू आर्टिकुलेट, और वो उनकी समझ को भी कॉम्प्रोमाइज करता है। यदि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और टिक किए जा रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्किंग। एग्जैक्टली। तो कोई आपको हेल्प भी नहीं कर पाएगा, किसी को पता ही नहीं आपने क्या सोच के किया। एग्जैक्टली, राइट। तो मैं स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करता हूं कि जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे प्रॉपर वर्किंग के साथ करिए। जब आप टेस्ट लिख रहे हैं, तो वो वर्किंग मत करिए। तो वो बैलेंस मेंटेन करना है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट, प्रॉपर डायग्राम बनाए, उस पर एनोटेशन करें, स्टेप्स लिखें, चाहे टाइम लगे, फर्क नहीं पड़ता। पर जब आप टेक्स्ट पढ़ते हुए, थ्योरी करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्लीज उसे स्टेप्स के साथ करिए, जल्दबाजी में मत करिए। और स्पीड बिल्डअप करने का टाइम मॉक टेस्ट होता है, उस टाइम पे यदि आपको जल्दी जल्दी क्योंकि मार्जिन वगैरह पे करना है, तो देन इट इज ओके। बट आई एम सो हैप्पी कि आपने ये वाला पॉइंट उठाया कि
क्या एमसीक्यूज या एमसीक्यू कल्चर या परवेसिवनेस ऑफ एमसीक्यूज इज इट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स? इट इज At times it is. इट इज नो एट टाइम नहीं, unequivocally it is compromising. Right. Sir, how is the NEET preparation exam for any exam of NEET is different from other preparations of any entrance exam? How do you define that? देखिए, यदि आप क्लास 12 तक के देखेंगे तो दो बड़े एग्जाम है, नीट और जेई है। वैसे क्लैट भी होता है जो लॉ के लिए होता है, और एक एग्जाम सीए वाले डायरेक्शन के लिए भी होता है, पर जो दो बड़े एग्जाम है वो नीट और जेई है। मेरे हिसाब से दोनों फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है, पर दोनों एग्जाम में जो चीज चाहिए होती है वो ये है कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। यू कैनॉट क्रैक एन एग्जाम लाइक नीट बाय प्रिपेयरिंग फॉर 2 months। करीब 3000 आवर्स का प्रिपरेशन है। 3000 hours. 3000 आवर्स। अब आप 3000 आवर्स को कैसे कंज्यूम करेंगे, उसको ऐसे सोच सकते हैं। And 3000 hours within कितने साल, मतलब within 1 year or 2 years? No, तो आइडियली व्हाट शुड हैपन इज, आप 10th से 11th में है, 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स इज पार्ट ऑफ नीट सिलेबस। इट इज नॉट ओनली 12। So you have 2 years basically. यू शुड प्रिपेयर फॉर 2 years। तो 10th से 11th में है, आपने किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया, तैयारी करना चालू किया, तो 2 साल के अंदर 365 इंटू 2 730 डेज है, 3000 आवर्स, तो करीब 3.5 to 4 आवर्स अ डे आता है। तो यदि आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यदि आप 3.5 to 5 आवर्स पढ़ रहे हैं, यू विल डू वेल। टॉपर जो होते हैं, टॉप 50 रैंक, उसमें 90% स्टूडेंट्स आर फर्स्ट अटेम्प्टर्स जिन्होंने प्रॉपर 2 year प्रिपरेशन की है। वेरी फ्यू पीपल आर ड्रॉपर्स जो 12th खत्म करने के बाद तैयारी कर रहे हैं। तो 3000 घंटे का तैयारी है। अब इसमें एक पार्ट जो होता है वो आपको कोई पढ़ा रहा है, someone is explaining to you rather than you trying to do it by yourself। तो ये जो सारा कोचिंग इंडस्ट्री है उस चीज के अराउंड बिल्डअप है कि एग्जाम हाई स्टेक एग्जाम है, किसी को आपको हेल्प करना चाहिए। तो पीपल हैव स्पेशलाइज्ड स्पेसेस जहां पे बच्चा जाता है, उसको तैयारी कराई जाती है, उसको पढ़ाया जाता है। तो ये एक पार्ट है। जो सिर्फ टीचर पढ़ा रहे हैं उसके बाद खुद कुछ नहीं कर रहा, उसके बहुत कम नंबर आएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट चालू होता है, आपको पढ़ा दिया, आप घर पे आए, आपने रिवाइज किया, उसके बाद यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपको जो पढ़ाया गया। अदरवाइज यू विल नेवर डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इफ यू आर नॉट अप्लाइंग दैट अंडरस्टैंडिंग इनटू सॉल्विंग क्वेश्चंस। प्रैक्टिस, एंड एवरी 2 weeks देन यू हैव टू राइट अ टेस्ट सो दैट यू नो कि आपने जो प्रैक्टिस किया, आपने जो समझा, वो आपको कितना आता है, उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, क्या चीज समझ में आई। और ये एक डिसिप्लिन के तहत फॉर 2 years यू हैव टू डू इट। इफ यू डू इट, जो लोग टॉप 100 टॉप 1000 रैंक ला रहे हैं, दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर 2 years एंड getting up at a particular time, sleeping at a particular time, remaining healthy, having some physical exercise and studying for school plus around 5 hours a day. That's tough. That's challenging also. हाँ, consistency is the challenging part. It is not good enough that you woke up someday, today I'm going to study, और आप 16 घंटे पढ़ लिए, then you did not study again for 10 days. That doesn't work. एक्सीलेंट सर, त्रिपुरा के साथ आपका ये जो नाते हो गया, मतलब द वे यू हैव अटैच्ड योर ऑर्गेनाइजेशन विद साइनैप्स, इसका मतलब स्टोरी क्या है ऑल ऑफ ए सडन? स्टोरी ये है कि हमें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की तरफ से फीडबैक आता था। पहले हम ऑनलाइन टेस्टिंग कराते थे, क्लासरूम टेस्टिंग नहीं कराते थे। तो स्टूडेंट्स का के पेरेंट्स का एग्जाम के बाद फीडबैक आता था कि सर आपका टेस्ट बच्चा लिख रहा था, उसका स्कोर 600 प्लस आता था, नीट में 200 मार्क्स ही आया। तो मैं उससे पूछता था कि आप बच्चे के सामने बैठे होते थे जब वो टेस्ट लिखता था? कि नहीं सर, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। सो द थिंग दैट हैपेंस इज पेरेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से। नाउ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, तो वो रोज थोड़ी लड़ेगा, उसे चीटिंग करके कैसे ना कैसे ही इज एबल टू शो गुड मार्क्स एंड रियलिटी देन समडे रियलिटी विल कम आउट, राइट? तो हम लोगों ने कहा वी विल चेंज इट, वी विल इंश्योर कि टेस्टिंग वाले एनवायरनमेंट पे हो, एक फिजिकल स्पेस में हो। तो हमने पिछले साल मेरी सुमन सर से बात हुई सैनैप्स के अंदर, मेरा और उनका वैल्यू सिस्टम मैच करता है एंड आई स्पेसिफिकली वांट टू मेंशन कि वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है। एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पे यू हैव टू गो बियॉन्ड किसी ने कितना पे किया। यू कांट से कि आपने इतना ही पे किया, मैं इतनी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। एजुकेशन विल डिसाइड व्हाट द पर्सन विल डू फॉर नेक्स्ट 40 years।
हेल्थ विल डिसाइड वेदर द पर्सन विल लिव और डाई, राइट? तो सुमन सर से बात करके मुझे लगा कि ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट preparing students for these competitive exams. We were very serious about preparing students for these competitive exams. और जो साइनअप्स करता है और हम जो करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है. साइनअप्स बच्चों को फिजिकली बैठा के पढ़ाते हैं, मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं, और हम एक बैकएंड है जहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं. तो दैट वे अ रिलेशनशिप इज वेरी गुड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री रादर देन इट हैज डुप्लीकेशन. देन देयर इज ऑलवेज अ फियर कि आई विल ओपन अ शॉप ऑपोजिट साइनअप. सो दैट वाज नेवर द आइडिया. सो उस सेंस में इट हैज वर्कड आउट वंडरफुली वेल. अभी करीब 120 स्टूडेंट्स गो टू साइनअप्स ऑन आवर टेस्ट डेज. आज जैसे एक टेस्ट डे था और जाके एग्जाम लिखता है फिजिकली, एंड इट इज फैंटास्टिक. दे आर गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग द एग्जाम बिफोर द एक्चुअल एग्जाम. Very nice. Sir, I have a question from one of the audience. He is writing that how all can deploy the exact number of most likely questions in your question paper. मैं समझा नहीं. Sir, how you all can deploy the exact number of most likely questions in your question paper? Actually, I think number of questions common कैसा आएगा is the question. तो आइडिया वो नहीं है. आइडिया ये नहीं है कि आपको एक कुंजी पकड़ा दिया जाए. आइडिया ये नहीं है कि डू दीज 200 क्वेश्चन, दीज आर गोइंग टू कम इन नीट एग्जाम. हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करीब 14,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा. 14,000. उसके अलावा हम उसे करीब 20 मॉक टेस्ट दे रहे हैं. 20 मॉक टेस्ट का मतलब अनदर 4,000 क्वेश्चन. हम ये कह रहे हैं कि जब आपने 18,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू वुड हैव प्रैक्टिस इनफ कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो हम दैट इज हाउ वी आर इंश्योरिंग दैट यू विल परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम. वी आर नॉट ट्राइंग टू डू इट बाय गेसिंग कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. दैट इज नॉट द पर्पज एट ऑल. ओके, दैट्स ब्रिलियंट सर. और गार्जियन के लिए आपका क्या वो रहेगा, सजेशंस, एडवाइस? वेरी गुड, थैंक यू. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. आई एम पर्सनली अ गार्जियन नाउ. ग्रेड 10 में बच्चा है. तो मेरे हिसाब से अपने से दूर मत भेजिए उसे, बहुत ज्यादा दूर. डेफिनेटली कोटा मत भेजिए. डेफिनेटली उसे दिल्ली मत भेजिए. अपने घर के आसपास चलिए, आप त्रिपुरा में थोड़े दूर है, अगरतला भेज दिया, ठीक है. दूसरी चीज, यदि आप उसे अपने से दूर भेज रहे हैं, वन ऑफ द पेरेंट्स शुड कम विद द चाइल्ड. ही रिक्वायर्स दैट इमोशनल सपोर्ट. वो अपने आप नहीं कर पाएगा, आसान नहीं है. और ये वाली जो जर्नी है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उतार चढ़ाव आएंगे. देयर वुड बी डेज जब बच्चा बहुत मोटिवेटेड होगा, देयर वुड बी डेज व्हेन ही वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड. तो उस समय पे आपके आसपास आपका गार्जियन है तो दे विल बी एबल टू एब्जॉर्ब द प्रेशर एंड गिव यू द रिक्वायर्ड मोटिवेशन. और तीसरी चीज है कि उसको बहुत ज्यादा नज मत करिए. आपको यदि लगता है कि वो सारे टाइम रीडिंग करता रहता है, सिर्फ वीडियो देखता रहता है, कुछ लिखता नहीं है, तो आप उसे जाके बोल सकते हैं कि आपको लिखना चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए. पर आप हर छोटी चीज में इंटरवीन करेंगे तो द स्टूडेंट विल पुश बैक एंड दैट इज नॉट हेल्पफुल. Right, and then the same question, if it is for the students, for example, I'm in class 10 and Kapil sir is there and I'm listening to him. मेरे लिए main advice क्या होगा कपिल सर का? 10th से अभी 11th में जा रहे हैं. हाँ. शुरू में मुश्किल होगा नीट का तैयारी. 10th से 11th थोड़ा स्टीप है हमारे यहाँ पे. इतना इट इज नॉट अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम 10th टू 11th. 11th सडनली थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, थोड़ी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड हो जाती है. यू विल फाइंड इट टफ to manage your school and your NEET preparation. But it will even out after 5 to 6 months. 5-6 महीने बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब तक डटे रहिए. Don't give up. Don't say to yourself you're not intelligent. वहां पे तो intelligent, there is nothing called intelligence. जो भी इंटेलिजेंट हैं, they have become intelligent by putting in the hours. उन्होंने घंटे लगाए, उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उन्होंने टेस्ट लिखा है, उससे वो इंटेलिजेंट बने. आप भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं. पर यदि आपने गिव अप कर दिया, आपने सोच लिया आपके बस की नहीं है, then the game is over. And one very common question that we have in Tripura, I mean, every time we listen guardians doing the same question, I mean, students asking the same question, that the mode of language. For example, I am from a Bengali medium school and I do not, understand English much. I cannot speak English much. So when I'm, thinking that I need to be with an organization called NEET.prep, NEET.com. Yeah, that's a national level organization. उसमें English है, मैं कैसे बात करूंगा, मैं किससे बात करूंगा, या all these, thought process are always there for
Bengali medium and also for I mean other board students who are not studying in English, maybe the Correct. mode of language. Correct. उन लोगों के लिए आपका कहना क्या होगा? थोड़ा तो टफ है, मतलब आई वुड नॉट से कि इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है, जो आपका इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा है, वो जब चेंज होना चालू होता है, नीट के अंदर अच्छा कंटेंट अंग्रेजी में है। अंग्रेजी भी हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैं केमिकल को रसायन नहीं बोल रहा हूं, मैं केमिकल को केमिकल ही बोल रहा हूं, बट आई एम टॉकिंग इन हिंदी। एग्जैक्टली। सो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लार्जली हमने देखा है कि समवॉट चल जाता है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो त्रिपुरा हो। आइडियल तो होता कि उड़िया इंग्लिश, बंगाली इंग्लिश, एसएमईज इंग्लिश में होता, बट क्या है, क्योंकि द ऑडियंस बिकम स्मॉलर जितना आप स्पेशलाइज करते हैं, तो उसकी वजह से शायद वो चीज अभी मास स्केल पे हो नहीं पाई। Okay. And the last question, or maybe more two questions to you, sir. The important thing that we see in Tripura, and that, I mean, obviously, I mean, it's an agricultural based state. So guardians, as you were saying in the beginning, कि उनके लिए तो दो ही सोच है कि अच्छा पढ़ाना है और अच्छा कुछ खिलाना है, खाने का वो चीज। तो त्रिपुरा being a very, I mean, quote unquote poor state, I mean, what about the money part involved if I want to be a doctor and if I want to study from organizations like your brand? ठीक है। तो देखिए, हम लोग, जैसा मैंने कहा, वी आर नॉट द प्राइमरी मोड फॉर प्रिपरेशन। प्राइमरी मोड एक क्लासरूम कोचिंग है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है त्रिपुरा में क्या प्राइसेस हैं, पर फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक साल का क्लासरूम कोचिंग का फीस 1 से 1.5 लाख रुपए है ना। अब यदि आप यहां से कोटा जाएंगे या स्टेट जहां पे आप रहते हैं उसके बाहर रहेंगे, तो फूड एंड अकोमोडेशन का भी एक्सपेंस आता है, विच कैन इजीली बी 10 to 12,000 अ मंथ, है ना। तो यदि आप क्लासरूम कोचिंग कर रहे हैं, अपने शहर में कर रहे हैं, तो 1 to 1.5 लाख ईयर खर्चा होगा। यदि आप किसी और शहर में जाके कर रहे हैं तो 2.5 to 3 लाख रुपीज खर्चा होगा। उसका अल्टरनेट ये है कि देयर आर सम वेरी गुड ऑनलाइन कोर्सेज विच आर गोइंग टू बी अराउंड 7-8,000 रुपीज। उसको आप टॉप अप कर लें नीट प्रेप के क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के साथ, दैट इज गोइंग टू बी अनदर 10,000 रुपीज। बट अगेन आई वांट टू कॉशन, ऑनलाइन का एक प्रॉब्लम है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सेल्फ डिसिप्लिन। काफी सारे बच्चे होते हैं, पर काफी सारे बच्चों को जबरदस्त स्ट्रगल होता है। जो स्ट्रगल करते हैं उनको ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, दे शुड इमीडिएटली शिफ्ट टू सम काइंड ऑफ क्लासरूम प्रोग्राम। तो ऑनलाइन प्रोग्राम वुड बी अराउंड 15,000 अ ईयर, और क्लासरूम इज गोइंग टू बी अराउंड 1.5 लाख अ ईयर। It's a huge difference. It's a huge difference. And what would be your last advice for the students who would be, I mean, sitting for the exam in the next coming year? पहली चीज तो यह है कि इट इज योर ड्रीम, इट इज नॉट समवन एल्सेस ड्रीम, एंड इफ इट इज योर ड्रीम यू शुड कमिट योरसेल्फ दैट यू विल वर्क हार्ड टू अचीव दैट ड्रीम। इफ दीज टू थिंग्स आर नॉट देयर, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। You should have a dream and you should work very hard towards it. Once that is there, then you should prepare in a very organized manner. Organized manner means every chapter is not finished till the time you have done the theory of it and you have practiced MCQs. And you should submit yourself to a regular testing program at least every 2 weeks now if you're writing exam next year, and from January onwards every week. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ কপিল স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা যারা আজকের এই অনুষ্ঠান শুনলেন এবং আপনারা যারা মা বাবা, আপনারা যারা আগামী দিনে নিজেদের ছেলে মেয়েদের ডাক্তার বানাতে চান এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করাতে চান, কপিল স্যার এবং সুমন স্যারদের সঙ্গে কথা বলে আপনারা আরো বিস্তারিত জানতে পারেন। সাইনেপস আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আপনারা একটি টেলিফোন নম্বর লিখে নিতে পারেন, সুমন স্যার এবং কপিল স্যাররা আপনাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এই যাবতীয় নানা প্রশ্নের উত্তর আপনাদের দিতে পারেন। 9485007122, আরেকবার বলি 9485007122, এই নম্বরে সুমন স্যার বিস্তারিত আপনাদের আরো বলতে পারবেন। আজ এ পর্যন্তই। আগামীকাল নতুন কোনো বিষয়, নতুন কোনো ভাবনায় আপনাদের সঙ্গে পুনরায় দেখা হবে। ভালো থাকবেন সবাই, শুভরাত্রি।